Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 6 video of concept basis revision. In this video lecture you will learn the assertion region type questions and the fill in the blanks type questions. Keep in mind, in previous 5 video lecture all about the concept basis question and revision of questions is based on the MCQ type. From this video onward you will learn the assertion region type question and fill in the blanks in part 6 video, and in part 7 video you will learn, after this video you will learn the true false type questions and match the following type question. That will be the last video for this topic. It means this is the second last video for this topic for heredity and evolution. As you all know, evolution is no more in our syllabus, so you should focus on the MCQs, fill in the blanks and true false, every kinds of question regarding the heredity only, that is the laws of inheritance only, the concept, the terminology and the experiment conducted by the Mendel's. So all about the matters of assertion and region types as well as the fill in the blanks type will discuss in this video lecture, and after this I will bring you the fill in the blanks type questions, that is a true false type questions and match the following type question. After the finishing of concept basis question, that is MCQs, fill in the blanks, true false, there will be the beginning of short and long type question, that is probably that probably asked in the upcoming examination in board examination. It is very important to you. Many of the students request me, sir please send me or revise me the 1 marks, 2 marks or long short type questions and their different concepts. So don't worry, uh, I will also uh, interested to bring them. So after the fulfill completion of heredity and evolution of concept basis question, I will bring you the short and long type question. So first of all, for this video lecture, let me begin the revision of assertion and region types later than the fill in the blanks type question. Now the assertion region type question. Assertion region means you have statements, at least two statements. One is the assertion, that is the statements, and other is the regions. So in this way, assertion is the region that given in option 2 may have the correct region for the assertion or may have incorrect region for the assertion, or maybe the assertion is not exact statements for the regions, or maybe both assertion and regions are incorrect. So that assertion and regions are very important to us and very important to you for the board examination. So let us talk about the rules for assertion and regions. In the following questions, the assertion and regions have been put forward. Read the statements carefully and choose the correct alternative form of the following. ऑप्शन एक कब चूज करना है? बोथ द असर्शन एंड रीजन्स आर करेक्ट एंड द रीजन्स इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. कह रहा है कि ऑप्शन ए तब पिकअप करना है जब असर्शन और रीजन दोनों सही हो और रीजन जो हो वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो. सेकेंड ऑप्शन कब चूज करना है? असर्शन एंड रीजन्स आर करेक्ट बट रीजन्स इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. यानी कि असर्शन रीजन दोनों सही हो, पॉइंट ए सही हो, बी सही हो, दोनों सही हो, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट. जैसे मैं कहूँ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या हैं? डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है. और इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र मोदी. इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद है. तो यहाँ पे हमको दोनों से कोई मतलब है नहीं, लेकिन दोनों चीज़ें सही है कि नहीं सही है? ये अपनी जगह पे सही है, अपनी जगह पे सही है, ठीक है. तो ये असर्शन और रीजन के लिए ऑप्शन बी वाला पॉइंट्स है. सी क्या कह रहा है? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन उसका गड़बड़ है. सी और डी कब चूज करना है? स्टेटमेंट असर्शन और रीजन्स क्या हो? असर्शन स्टेटमेंट ऑफ द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन्स इज ट्रू. सेकेंड में कब जाना है? जब रीजन सही हो और असर्शंस गड़बड़ हो. तो ये कुछ पॉइंट्स थे, रूल्स थे जो मैंने बता दिया. अब आपको ए बी सी डी किस में चूज करना है, यहाँ पे मैंने असर्शन दे दिया. असर्शन पहला क्या दिया है? व्हेन प्योर ब्रीड टाल प्लांट्स. कह रहा है कि व्हेन प्योर ब्रीड टाल प्लांट्स आर क्रॉस्ड विथ प्योर ब्रीड शॉर्ट प्लांट्स,
all plants in F1 progeny are tall. When the tall plants of F1 progeny are crossed, short plants reappeared in F1 F2 progeny. यानी कि क्या कह रहा है, जब एक टाल पी प्लांट का एक ड्वार्फ पी प्लांट्स के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो F1 में क्या मिलता है, सब के सब टाल मिलते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन कह रहा है कि F2 में जब इनका क्रॉस करवाया जाता है सेल्फ क्रॉस तो F2 में कुछ ड्वार्फ में मिलते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, 1:3 1:2:1 के रेशियो में। अब सवाल ये उठता है कि क्या असर्शन सही है, तो असर्शन 100% सही है। रीजन क्या है, ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। कह रहा है कि ट्रेड्स जो है इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड है। तो आपको मेंडल्स का लॉ अगर लर्न होगा, याद होगा, तो आपको पता है मेंडल्स का एक लॉ ये भी था, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो F1 F2 के लिए यही रूल्स को जस्टिफाई करता था। यानी इसके लिए जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर करेक्ट एंड रीजन्स आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, जो रीजन्स है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसके लिए ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आप खुद से असर्शन और रीजन्स कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें दिमाग बस लगाना रहता है, दोनों स्टेटमेंट को समझना पड़ता है, दोनों स्टेटमेंट को सुनना पड़ता है, उसके बाद दोनों स्टेटमेंट्स के लिए एक आंसर प्रिडिक्ट करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जानना, समझना और सुनना। अब आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है, असर्शन में आते हैं, वेरिएशन इज हाई इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स कंपेयर टू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें वेरिएशन ज़्यादा मिलता है। सपोज दैट ये कोई ऑर्गेनिज्म से, पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर समझाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, हाँ अब ये पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। अभी तो असर्शन में हम आते हैं, ये जो है असर्शन में आते हैं, तो असर्शन के अकॉर्डिंग तो स्टेटमेंट सही है। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई कोई ऑर्गेनिजम्स है, ये एक कोई ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करेगा तो इसका बच्चा क्या होगा, ग्रीन होगा। ये भी ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन करेगा तो इसका भी बच्चा क्या होगा, ग्रीन होगा। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो इसमें भी बच्चा इसका ग्रीन होगा। तो ये सीरीज कब आ रही है, जब सब के सब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, तो पेरेंट्स ग्रीन है तो ये भी ग्रीन होगा, ये भी ग्रीन होगा, ये भी ग्रीन होगा। इसमें क्या होगा, नो वेरिएशन, वैरायटी नहीं मिलेगी, इसमें वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन वेरिएशन कब देखने को मिलता है, ये कोई ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिजम्स है जो किस कलर का है, जो आपका ग्रीन कलर का है। ये एक दूसरा कोई ऑर्गेनिजम्स है जो आपका क्या है, रेड कलर का है। ठीक है, ये पेरेंट 1 है, ये क्या पेरेंट 1 है, और ये पेरेंट 2 है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस, यानी कि कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आगे जो जनरेशन मिलेगी आपको वो कैसे मिलेगी, जनरेशन जो आपको मिलेगी उसमें आपको 50% कैरेक्टर्स आपको रेड मिलेगा और 50% कैरेक्टर जो है आपको क्या मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। और इसी को बायोलॉजी में बोला जाता है वेरिएशन, इसी को क्या बोला जाता है, वेरिएशन। तो वेरिएशन के लिए स्टेटमेंट आपका जो पॉइंट 1 दिया है वो स्टेटमेंट पॉइंट 1 वो बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन बिल्कुल एकदम सही है, 100% सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे दिया है, इन एक्यूरेसीज ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग गिव राइज टू वेरिएशन। कह रहा है कि अगर इन एक्यूरेसी हो रहा है तो वो जो है वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो इन एक्यूरेशन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट से वेरिएशन होता है। यहाँ पे कोई पेरेंट्स है, टाल है, ठीक है, और इसकी बॉडी में आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, और इसके डीएनए में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी आ गई, डीएनए में थोड़ी सी इनकम्प्लीशन हो गया, कुछ कमी रह गई, तो बच्चे में क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम दूसरा है, यहाँ पे क्या है, ये प्रॉब्लम जो है आपका दूसरा प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये प्रॉब्लम जो दिख रहा है, ये सेकेंड वाला प्रॉब्लम जो है ये डीएनए कॉपिंग में फॉल्ट को दिखाया है, जबकि शुरुआत में हम क्रोमोजोमल यूनिट तक ही समझते हैं। ये क्रोमोजोम 50% इसका आ रहा है, 50% इस पेरेंट्स का आ रहा है, ये वेरिएशन, वेरिएशन पेरेंट्स लेवल पे जो आ रहा है वो असर्शन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन जो रीजन्स में दिया है वो डीएनए
कि कॉपिंग में यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड गैमीट फॉर्मेशन जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम जो है वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जरूर है, लेकिन यहाँ पे डीएनए बिल्कुल पूरी पूरी कॉपी हो रही है, इसका डीएनए पूरा कॉपी हो रहा है, इसका डीएनए पूरा कॉपी हो रहा है। तो ये इसमें हम लिखेंगे असर्शन जो है सही है, बट जो है सेकेंड वाला जो इसका रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए हम ऑप्शन इसके लिए कौन जाएंगे, ऑप्शन बी में हमारा ये स्टेटमेंट था। ऑप्शन बी क्या बोल रहा था, असर्शन एंड रीजन्स आर करेक्ट, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही था, लेकिन जो रीजन था वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये दूसरा व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट 2 है इसके लिए जो ऑप्शन रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा, यानी कि ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो रीजन है ये ए का यानी असर्शन का करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट रीजन नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या कर रहा है, एक्वायर्ड ट्रेड्स कैन नॉट बी पास फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब आप बताइए ये सही है कि नहीं है। चलो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने अपने से सोचा है ये सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्वायर्ड ट्रेड्स कैन नॉट बी पास, एक्वायर्ड ट्रेड्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, चलो हमको तो ये बताओ कि कौन सा, अगर एक्वायर्ड ट्रेड्स ये सही है स्टेटमेंट, भाई सही स्टेटमेंट तो कह रहा है एक्वायर्ड ट्रेड्स कहाँ पास आउट होता है। एक पेरेंट्स अगर बहुत बड़ा इसकी बॉडी साइज है, रेसलर है, तो इसकी ये ट्रेड्स जो है इसी में रह जाएगा, ऐसा नहीं इसका बच्चा जो है डॉक्टर बन जाएगा या रेसलर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स जो है पास आउट नहीं होता है। अब कौन सा ट्रेड्स पास आउट होता है, इनहेरिटेड ट्रेड्स पास आउट होता है। ठीक है, कौन सा ट्रेड्स पास आउट होता है, इनहेरिटेड ट्रेड्स, इसी पे आपको फोकस करना है। इनहेरिटेड ट्रेड्स पास आउट होता है, एक्वायर्ड ट्रेड्स पास आउट नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल एकदम 100%। इन एक्यूरेसी ड्यूरिंग डीएनए कॉपीज ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स इज मिनिमम, कह रहा है कि इन एक्यूरेसीज ये भी वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये ट्रूज है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इन एक्यूरेसीज ड्यूरिंग डीएनए कॉपीज ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स इज मिनिमम। देखो डीएनए कॉपीज का एक्वायर्ड ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, यानी ये रीजन भी गड़बड़ है, ये रीजन के लिए जो स्टेटमेंट लाइन दिया है ये खुद गड़बड़ है। यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट यानी कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो रीजन जब गलत है तो ये असर्शन का वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए और बी के बारे में हम तो जानते हैं, सी को देख लेते हैं। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यही हमारा स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि असर्शन सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसी पे आपको फोकस आउट करना है। ठीक है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है। चलो आते हैं, तो ये हमारा असर्शन रीजन के 3 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था और इसको आई थिंक आप कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको फोकस करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है द नंबर ऑफ पेयर्स, क्या दिया है, द नंबर ऑफ पेयर्स सेक्स क्रोमोजोम्स इन द जाइगोट इन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, कितने पेयर्स होते हैं, 1 पेयर्स होते हैं, या तो XX होगा या फिर XY होगा। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक, कह रहा है क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल फॉर्म ऑफ डीएनए विच कैरियर्स द, कह रहा है कि वो क्या कैरियर्स क्या कैरी करके ले जाता है। ठीक है, क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक्चुअल में क्रोमोजोम्स थ्रेड लाइक नहीं होता है। क्रोमोजोम्स आप पढ़े होंगे 9th में, ठीक है 10th में, तो इसमें जो अंदर इसके क्रोमैटिन होता है ना, क्रोमैटिन बोलते हैं इसको, क्रोमैटिन, ये थ्रेड लाइक होता है। और ये क्रोमैटिन किससे मिलके बना होता है, डीएनए से। ठीक है, डीएनए से। अब आगे कह रहा है न्यूक्लियस में तो होता ही है, फॉर्म ऑफ द डीएनए विच कैरीज, ये किसका कैरियर्स होता है, इसमें क्या कैरी करके ले जाता है, कई बार बताया जा चुका है आपको, इट कैरी द जीन्स, इट कैरी द जीन्स, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, जीन्स भरा जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स फॉर्म ऑफ द डीएनए विच कैरियर्स, ये कैरीज होगा, बार बार कैरियर्स पढ़ना है, कैरीज द
जीन्स, ठीक है, ये जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन कई बार हो चुका है। सेक्स क्रोमोसोम की जगह पे ऑटोसोम कर देगा तो 22 पेयर्स में जाएगा, और नंबर में पूछेगा तो 44 हो जाएगा। कभी कभी बच्चे जो है पेयर्स में ये कन्फ्यूज हो जाते हैं, पेयर्स क्या होता है और और ये जो है पेयर्स क्या होता है और नंबर्स क्या होता है, उसी में वो ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। पेयर्स दिया रहता है तो उसमें जो है 1 करके चले, उसमें 44 या 22 करके चले आते हैं। अगर वो पेयर्स नहीं दिया रहता है तो भी वहाँ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे आपको तुरंत जो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या दिया है, पेयर्स दिया है या फिर नंबर दिया है। यहाँ पे पेयर्स दिया है तो हमेशा 1 करेंगे, नंबर देता तो 2 भरते। ऐसे ही कभी कभी पूछ देता हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द बॉडी, क्रोमोसोम्स में बॉडी में कुल कितने पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब आप पेयर्स पढ़ेंगे तो 23 में आएगा, और नंबर में पढ़ेंगे तो 46 में आएगा। इसी पे आपको फोकस करना है, इसी पे आपको पॉइंट आउट करना है बार बार। जब भी पेयर पूछे तो पेयर को देखते हैं, जब भी नंबर पूछे तो नंबर को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जीन्स होगा ऑप्शन, ठीक है, जीन्स, और यहाँ पे सिंगल होगा, 1 2 पेयर्स नहीं होगा, हमेशा 1 पेयर्स होंगे। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जीन्स आर those which decide the appearance of an organism only in presence of another identical genes। कौन सा जीन्स होता है जो डिसाइड करता है, कौन सा ऐसा जीन्स है जो डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिजम्स में दूसरा जो जीन्स है वो कैसा है। यानी कि सपोज दैट ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ठीक है। ए जीन्स डिसाइड करेगा कि बी जीन्स कैसा है, तब जाके हम ट्रैट्स बनाएंगे। तो ए जीन्स कौन सा सॉरी, ए जीन्स कौन सा जीन्स होगा, ए जीन्स कौन सा जीन्स होगा, ए जीन्स होगा रिसेसिव जीन्स, ठीक है। कौन सा जीन्स होगा, रिसेसिव जीन्स, ठीक है। ए जीन्स कौन सा जीन्स होगा, रिसेसिव जीन्स। सो रिसेसिव जीन्स आर दोज विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अनदर जीन्स, ठीक है। रिसेसिव जीन्स हमेशा दूसरे जीन्स पे डिपेंड रहता है कि वो कैसा है। अगर दूसरा जीन्स डोमिनेंट है तो रिसेसिव जीन्स एक्सप्रेस नहीं होगा, दूसरा जीन्स रिसेसिव है तो रिसेसिव जीन्स एक्सप्रेस होगा। फॉर एग्जांपल मान लो स्मॉल टी है तो ये क्या होगा, टाल होगा कि ड्वार्फ होगा, ये डिपेंड करेगा कि दूसरा वाला जीन्स क्या है। दूसरा वाला जीन्स अगर स्मॉल होगा तो ये तुरंत जो है ड्वार्फ हो जाएगा। अगर ये टाल है, स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल टी है, दूसरा वाला कैपिटल टी हो जाएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, टाल हो जाएगा। यानी कि दूसरे जीन्स पे डिपेंड रहता है। ये कौन सा जीन्स है, रिसेसिव जीन्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिजम्स। जीन्स को किस फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं, जीन्स को किस फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। तो जीन्स को हमेशा जीनोटाइप में डिस्क्राइब करते हैं। जीन्स को हमेशा किस में डिस्क्राइब करते हैं, जीनोटाइप में डिस्क्राइब करते हैं। जीन्स आर डिस्क्राइब एज इन फॉर्म ऑफ जीनोटाइप। लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। जीन्स ऑलवेज डिस्क्राइब एज अ जीनोटाइप्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। जीन्स वर्क्स ऑलवेज इन। जीन्स हमेशा किस में वर्क करता है, तो जीन्स हमेशा किस में वर्क करता है भाई, पेयर्स में वर्क करता है, ठीक है। जीन्स हमेशा जैसे स्मॉल टी है ये कुछ नहीं बनाएगा, कैपिटल टी है ये भी कुछ नहीं बनाएगा। दूसरा कैपिटल टी है या दूसरा स्मॉल टी है या ये स्मॉल टी है या फिर दूसरा कैपिटल टी, हमेशा जीन्स और क्रोमोसोम्स पेयर्स में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसी पे आपको फोकस आउट करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। असर्शन रीजन्स भी हमने इसमें कवर कर लिया, और ये हमारा वीडियो नंबर 6 था, रिविजनल वीडियो नंबर 6 फॉर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें हमने इवोल्यूशन वाले सारे पोर्शन को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। और आपको पहचानना है कि इवोल्यूशन का कौन सा है और हेरिडिटी का कौन सा है। सारा पॉइंट आप एक्सप्लेनेशन के साथ कॉपी में लिख लेंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर मैं शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप को जब सेलेक्ट करूँगा तो डिटेल में पूछे गए आंसर को मैं डिस्क्राइब कर दूंगा उसमें, ठीक है। अगर आप वीडियो में शुरुआत से देख रहे होंगे रिवीजन तो आपको पता होगा कि वीडियो के साथ हमने बहुत सारा लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को भी मैंने कवर कर रखा है, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपको रोज़ डेली बाय डेली जो वीडियो आ रहा है उस पर फोकस करना है और उसी पे डिपेंड रहना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है नोट्स में सारे क्वेश्चन को अच्छे से
लिख लेना है और सबके सब सारे प्रोबेबल आंसर को वीडियो देख करके ही कॉपी में सब कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन जो अभी दिख रहा है, ये झांक रहा है देखो ट्रू फॉल्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कि वो होगा हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 7, उसमें हम कवर अप करेंगे। थैंक यू।